started with the topic human reproduction, and we discussed about male reproductive system. I'm going to quickly revise the same topic. I told you that the primary sex organ in males is testis, right? Because in testis are the male gametes formed, and it also secretes the hormone testosterone. Testes lie in dark colored sac called scrotum outside the body cavity, so as to provide the testis 2 to 3 degrees Celsius less temperature than the body temperature, because the desired temperature is required for spermatogenesis to happen. Spermatogenesis means formation of sperms or the male gametes. Gubernacular cord attaches the testis to the wall of scrotum, and inguinal canal connects the scrotal sac to the abdominal cavity. Initially, the testes are formed within the abdomen, but during the 7th month of pregnancy, they descend in the scrotum. Fine. We discussed about, I took the cross section of testis to explain you certain procedures. The testis is externally covered by tunica vaginalis, and the internal layer, tunica albuginea, divides the scrotum into 250 testicular lobules. Tunica vaginalis covers it on the outside, and tunica albuginea, which is the dense covering, it covers the testis and also divides it into the testicular lobules. 250 compartments called testicular lobules. I told you that each one of the testicular lobule contains 1, 2, 3 seminiferous tubules in which the male gametes are formed. So in total we can say that there are 250 to 750 seminiferous tubules. The seminiferous tubules are initially curved like this, then they straighten ahead. It is inside the seminiferous tubules that the male gametes are formed. Male gametes travel from seminiferous tubule to this network called rete testis, and from rete testis to vasa efferentia. Then from vasa efferentia to a structure called epididymis. I will label this here. Which has three parts: caput epididymis,
caput, corpus and chorda epididymis. Caput I told you that it means head, corpus means body and chorda means tail. So after vasa efferentiae enters epididymis. Now if I shorten it a bit, like from here, a new tubule will start off. This tubule is known as vas deferens. It will be more clear here. A thick lining can be seen on the posterior side of, a line-like structure can be seen on the posterior side of testis, and then we can see the vas deferens rising up in the abdomen. It rises up till nearly till the upper end of urinary bladder, and this vas deferens loops around the ureter. And soon after, the ampulla is joined by a duct from a gland known as seminal vesicle to form, they both join to form ejaculatory duct. Now this ejaculatory duct just joins below the urinary bladder, and just above this is a donut-shaped gland covering it. This gland is known as prostate gland. See, seminal vesicles are a paired gland, one on the left side, one on the right side. But prostate gland is a single gland. Fine. Now after that we can see that since it is joined the urinary duct, so they both join at this time to form the urinogenital duct, which carries not only the urinary secretions but also the genital secretions, that is from the gonads. Clear? One thing to be added, that a couple of more glands, that means a pair of one gland would rather be more correct to say, that Cooper's gland or bulbourethral gland. Two names of just one gland they are. ये भी पेयर्ड होते हैं, Cooper's gland, और seminal vesicles भी पेयर्ड होते हैं, सिर्फ prostate gland यहाँ पे सिंगल ग्लैंड होकर। तो ये अब क्या है, स्पर्म्स, ये सभी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस, ये सब कुछ एक साथ इस डक्ट के अंदर आ जाता है, जो डक्ट यूरिन के लिए भी सेम पैसेज ही है। तो ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो होती है, ये कौन से स्ट्रक्चर के अंदर होती है? ये होती है बच्चे पेनिस के अंदर, विच इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन। पेनिस के अंदर होती है ये, विच इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन, एज वेल एज नाउ वी नो दैट ये क्या है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट कैरी कर रही है, तो यूरिन का पैसेज भी इसी से होगा और जेनाइटल ग्लैंड्स का भी इसी से होगा। और ये चीज आउटसाइड ओपन होती है यूरेथ्रल मीलेटस से, जिसकी ओपनिंग गोल नहीं होती, स्लिट शेप ओपनिंग यहाँ पे होती है। क्लियर? तो दिस वाज व्हाट वी डिड यस्टरडे। अभी मैं आपको शॉर्ट ग्लिम्स दूंगी, इसका क्रॉस सेक्शन सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी। क्लियर? कि यहाँ पे किस तरीके से गैमीट्स बन रहे हैं। जस्ट टेक अ लुक एंड आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। मैंने अभी कुछ पोर्शन इस डायग्राम पे रखा है, बाकी रख कर दिया ताकि मैं इस एस्पेक्ट पे मेनली फोकस कर सकूं। तो इस पोर्शन को अगर हम यूं क्रॉस सेक्शन करके
यहाँ पे क्यू रिफ्लेक्ट करके देखेंगे तो मैंने आपको क्या बताया कि इस क्वेश्चन में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये ट्यूब्यूल हैं तो हमें कैसे दिखाई देंगे, गोल दिखाई देंगे। और ये गोल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दे आर लाइंड बाय जर्माइनल एपिथेलियम। ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स and on the inside they are lined by an epithelium which is germinal epithelium। और इस जर्मिनल एपिथेलियम में दो चीजें यहाँ पे हमें इसके अंदर में दो तरह के हमें सेल्स दिखाई देंगे। आप देख रहे हो कि मैं ज्यादातर सेल्स यूं क्यूबॉइडल शेप, इस तरीके के क्यूबॉइडल शेप दिखा रही हूँ। इन सबके बीच में न्यूक्लियस होगा। तो मैं थोड़ा जल्दी में करूंगी तो आई विल नॉट मेक द न्यूक्लियस एवरीवेयर। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड यहाँ पे दो तरह के सेल्स होंगे, क्यूबॉइडल शेप, क्यूबॉइडल एपिथेलियम या जर्मिनल एपिथेलियम ये जो होता है, और कुछ पिरामिडल शेप सेल्स होंगे। पिरामिड का मतलब जैसे नीचे से ब्रॉडर है ऊपर से नैरो, तो इस तरीके के सेल्स यहाँ पे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ पिरामिडल शेप सेल्स बनाए हैं और क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये ही बेसिकली जो मेन जर्म सेल्स से बनेंगे। जर्म सेल्स यानी कि ये वो एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसके अंदर जब मियोसिस होगी तो इससे जो है मेल गैमीट्स बनेंगे। क्लियर? और ये जो दूसरे मैं पिरामिडल शेप सेल्स बना रही हूं, ये क्या है, इनको बेटा हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को नर्स सेल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये नरिशमेंट कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं उनकी। क्लियर? अब यहां पे आप देखोगे मैंने इन पोर्शंस का क्रॉस सेक्शन इस तरीके से दिखाया है, और ये जो इनके बीच की इंटरस्टिशियल स्पेस है, इन ट्यूब्यूल्स के बीच की ये वाली जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस, इसका मैंने अभी तक कुछ भी शो नहीं किया है। इसमें क्या होता है, इस पोर्शन का क्या सिग्निफिकेंस है। अभी मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि इसमें गैमीट्स बनते हैं, दूसरा इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है वो भी बनता है। अब मेल गैमीट्स कहाँ पे बनते हैं वो आपको क्लियर हो गया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन है वो कहाँ बनता है और क्यों किस तरीके से बनता है। यहाँ पे इसके इंटरस्टिशियम के अंदर यानी कि इस लोकेशन के अंदर कुछ सेल्स होंगे। क्योंकि ये सेल्स इंटरस्टिशियम के अंदर है तो इन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स तो कह ही सकते हैं, लेकिन मोर अप्रोप्रिएटली इनको हम कहते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स कहते हैं। ठीक है? अब ये जो सर्टोली सेल्स है बच्चों, ये वाले जो क्यूबॉइडल पिरामिडल शेप सर्टोली सेल्स हैं, ये एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं ABP या एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो लेडिक सेल्स हैं इनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन को ही हम मेल सेक्स हार्मोन्स आर नोन एज एंड्रोजन्स एंड दिस इज द मेन वन, सो इसी को हम एंड्रोजन रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। ध्यान दें, लेडिक सेल्स मैंने कहा एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहे हैं। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में हेल्प करते हैं, जैसे कि
एक तो बॉडी की डेवलपमेंट भी जो उसको मेटिंग के लिए एंड ऑल दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी को जो रेडी करना है वो काम भी टेस्टोस्टेरोन करेगा। मोर ओवर जैसे पर्टिकुलर मेल फीचर्स हैं, बियर्ड ग्रो होना, शोल्डर विड्थ वगैरह ब्रॉड होना, बॉडी का शेप स्ट्रक्चर उस हिसाब से बना, बॉडी थोड़ी ज्यादा मस्कुलर होती है एज कम्पेयर टू द फीमेल, तो वो पर्टिकुलर जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रोवाइड करना, प्लस गैमेट्स प्रोड्यूस करवाना भी इसका फंक्शन होता है। अब आप कहोगे मैम ये तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है लेकिन गैमेट्स इधर बन रहे हैं, तो इसका इससे क्या लेना देना है? ध्यान दें बच्चों, इसको मैंने बताया कि ये एंड्रोजन है, एंड्रोजन रिलीज कर रहे हैं लेडी सेल्स। दूसरी तरफ मैंने बताया कि इसके अंदर ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन यहाँ है, यहाँ पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि एंड्रोजन के साथ बाइंड करने वाला प्रोटीन बन रहा है। तो क्या होगा, ये जो एंड्रोजन यहाँ पे रिलीज हो रहा है क्योंकि इसके अंदर एबीपी रिलीज हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल जिसकी अफिनिटी है इसके साथ बाइंड करने की, तो अब ये केमिकल विल बी ड्रैग्ड इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इससे क्या होगा, अंदर एंड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। आई रिपीट, सर्टोली सेल्स रिलीज कर रहे हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दैट प्रोटीन विल नाउ अट्रैक्ट एंड्रोजन टू कम इनसाइड। तो एंड्रोजन जो है वो यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस से जो लेडिक सेल इंटरस्टिशियल स्पेस में जो लेडिक सेल्स बना रहे हैं इंटरस्टिशियल स्पेस से वो अट्रैक्ट होकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएगा। जब उसकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल्स के अलावा जो सेल्स पड़े हैं ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम वाले, जर्मिनल एपिथेलियम वाले, दे विल बी स्टिमुलेटेड टू डिवाइड मियोटिकली सो एज टू फॉर्म मेल गैमेट्स। इनिशियली ये सीधा मियोसिस नहीं कर देंगे, इनिशियली ये माइटोसिस करेंगे, उसके बाद मियोसिस करेंगे। वो सारा प्रोसीजर हम स्पर्मेटोजेनेसिस हेडिंग के अंदर प्रॉपर करेंगे। क्लियर? अभी मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो इस पोर्शन का क्रॉस सेक्शन लेके हमने देखा कि यहाँ पे जैसे 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मैंने बना दिए, उसमें से एक को मैंने इलैबोरेट किया समझाने के लिए। तो each seminiferous tubule is lined by cuboidal epithelium and pyramidal shaped Sertoli cells. अब interstitial space में Leydig cells हैं. These Leydig cells will secrete androgen या testosterone mainly. ठीक है? तो इसके अंदर जो Sertoli cells हैं, they will release what? Androgen binding protein. So this androgen or testosterone will be attracted inside and its concentration will increase inside the seminiferous tubule. तो यहाँ पे concentration बढ़ जाएगी तो germinal epithelium will be stimulated to form sperms. और Sertoli cells का क्या function है? जैसे ही sperms बन जाएंगे तो this sperm, ये जो sperm बन जाएगा, इस sperm का head Sertoli cell के अंदर embed हो जाएगा. स्पर्म्स का हेड सर्टोली सेल के अंदर एम्बेड हो जाएगा और इसको नरिशमेंट देगा और रेडी करेगा फॉर फर्टिलाइजेशन. उसके बाद जब इजैकुलेट होना होगा तो ये स्पर्म का हेड इसके बाहर आ जाएगा, ट्यूब्यूल के जो ल्यूमेन है उसके अंदर आ जाएगा एंड देन इट विल स्विम फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू द पाथवे दैट वी डिस्कस्ड. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट and the urinogenital duct से फीमेल genital tract के अंदर. क्लियर? ल्यूमेन में आने के बाद से. This was about the cross section. I hope the things are clear to you. Just take a look before I move on to the next topic. बच्चों मैंने आपको बताया था कि पेनिस की इरेक्शन चाहिए होती है. जैसे हमने पेनिस का स्ट्रक्चर किया कि वो इनिशियली इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे जाके उसका पोर्शन हल्का सा ब्रॉड हो जाता है जिसे हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं और फिर एंटीरियर ऑफ ग्लांस पेनिस दैट इज कवर्ड बाय फोरस्किन. मैंने आपको बताया था कि इसका इरेक्शन चाहिए होता है फॉर कॉपुलेशन ताकि डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सीमेन हो सके विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो इस चीज का अगर हम क्रॉस सेक्शन करके देखें, मैं आपको इन डिटेल क्रॉस सेक्शन की ईच एंड एवरीथिंग
नहीं बताऊंगी, जस्ट इरेक्शन के लिए जो क्वेश्चन चाहिए वो बताऊंगी, बिकॉज वैसे सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको ये चीज बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, 3 बंडल्स होते हैं। दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट या डॉर्सल पार्ट आप कह सकते हो, एंड दिस इज द एंटीरियर पार्ट या वेंट्रल पार्ट आप कह सकते हो। ये जो 2 बंडल्स हैं इन्हें बच्चे हम बोलेंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और ये वाला जो बंडल है इसे हम कहेंगे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये तीनों ही बंडल्स बहुत ही ज्यादा वैस्कुलर होते हैं। क्या होते हैं? वैस्कुलर। वैस्कुलर मतलब अगर इनके कट सेक्शन में हम देखेंगे तो हमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे अपीयर होती है। क्या अपीयर होती है बच्चे? बहुत ही सारी ब्लड वेसल्स, तीनों में ही। और ये वाला जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है इसके अंदर यहाँ पे वो स्लिट लाइक ओपनिंग जिसकी मैंने आपको बात की थी कि स्लिट लाइक ओपनिंग होती है यूरेथ्रल मिएटस, यानी कि जिससे कि सिक्रीशंस बॉडी के बाहर जाती हैं। तो वो स्लिट लाइक ओपनिंग किसके अंदर होती है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब इरेक्शन के टाइम पे इन बंडल्स के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर बहुत ही ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है। वो ब्लड फ्लो होने की वजह से, क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो जाता है, फ्लो ज्यादा हो जाता है, तो पेनिस की इरेक्शन हो जाती है। और यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट की भी इरेक्शन हो जाती है, स्ट्रेटन हो जाती है, फॉर द ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। सीमेन जो टर्म यूज कर रही हूँ इसका क्या मतलब है? जो हमने पीछे बात की, स्पर्म्स की सिक्रीशन, जो सिक्रीशन टेस्टिस से आ रही है वो सिक्रीशंस प्लस वो तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन, यानी कि इन टोटल जितना भी सिक्रीशन उसके ग्लैंड्स का या टेस्टिस से जितना भी सिक्रीशन, इन टोटल जो फ्लूइड है जो बॉडी के बाहर जाएगा उसे हम कहते हैं सीमेन। जस्ट टेक अ लुक। But now we are going to discuss about male accessory glands. मैंने आपको 3 तरह के ग्लैंड्स बताए हैं, तो इस तरीके से आप इसमें चार्ट बना सकते हैं। तो मैंने जैसे बोर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 3 ग्लैंड्स की हमने किसकी बात की है? सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल, फिर बच्चों हमने किया प्रोस्टेट ग्लैंड, देन आई टोल्ड यू अबाउट bulbo urethral gland with another name as Cooper's gland। क्लियर? तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब जो टोटल तीनों ग्लैंड की जो टोटल सिक्रीशन होती है, अगर 100% सिक्रीशन है देन 60% सिक्रीशन सेमाइनल वेसिकल की होती है, 25% सिक्रीशन प्रोस्टेट ग्लैंड की होती है, और बाकी रह गया नियर अबाउट 15% सिक्रीशन कोपर्स ग्लैंड की होती है। और अगर नेचर की बात करें तो इसकी सिक्रीशन एल्कलाइन, बल्बो यूरेथ्रल की भी प्रॉपरली एल्कलाइन, यानी कि बेसिक सिक्रीशन इसकी भी एसिडिक नहीं होती है लेकिन स्लाइटली एल्कलाइन इसको हम स्टेट करते हैं। ठीक है,
इसकी मेजर सिक्रीशंस की अगर बात करें तो सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन में आते हैं फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज किस लिए होगा बेटा, इमेजिन करो, फ्रक्टोज किस लिए होगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। किसके लिए होगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे हमारी बॉडी में ज्यादातर ग्लूकोज यूज होता है तो एनर्जी नीड्स के लिए ये कार्य करता है। और इसके अंदर होते हैं बच्चे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे ही सीमेन फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है तो फीमेल बॉडी के यूट्रस के अंदर ये कुछ कंट्रैक्शंस कॉज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दे कॉज यूट्राइन कंट्रैक्शंस। यूट्राइन कंट्रैक्शंस उसमें एक तरीके से पेरिस्टाल्टिक वेव जैसी बन जाती है। जैसे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स में पेरिस्टाल्टिक वेव होती है, फूड आगे जाता है, तो कुछ उस तरीके की मूवमेंट यूट्रस के अंदर ये क्रिएट कर देते हैं ताकि जो स्पर्म्स है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से इजीली पहुंच सके एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी होते हैं। ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स कुछ वैसे नहीं होते जैसे हमने पहले पढ़े हैं, कुछ ऐसे क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं ये कि जैसे ही सीमेन फ्रॉम यूरेथ्रा बाहर इजैकुलेट होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, तो उस एक वक्त में क्या होता है कि उसको ये एक बार कंसंट्रेट कर देते हैं। उसकी अमाउंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक बार उसको यहाँ पे क्लॉट कर देते हैं। तो उसके लिए ये कुछ टाइम के लिए करते हैं, तो उस टाइम के लिए ये वहां पे क्लॉटिंग प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये फ्रक्टोज के बारे में। ध्यान दें, फ्रक्टोज ह्यूमन बॉडी के अंदर और कहीं भी पाया नहीं जाता। फ्रक्टोज ह्यूमन बॉडी के अंदर और कहीं पाया नहीं जाता। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है, रेप टेस्ट के अंदर इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो जाती है कि अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर अगर फ्रक्टोज पाया जाता है तो वो रेप टेस्ट के लिए, रेप टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मली और कहीं पे भी फ्रक्टोज ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया नहीं जाता। जस्ट टेक अ लुक एट द सेमाइनल वेसिकल सिक्रीशंस। एक और चीज, अल्कलाइन सिक्रीशन जो इसकी है, अब जैसे ही सीमेन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है तो वहां पे कुछ एसिडिक सिक्रीशंस होती हैं। इम्यूनिटी बेस के लिए कुछ एसिडिक सिक्रीशंस होती हैं, तो वो एसिडिक सिक्रीशंस स्पर्म्स के लिए काफी हार्मफुल होती हैं। तो इसकी अल्कलाइन नेचर जो है वो उस एसिडिक नेचर के साथ उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है ताकि ज्यादा स्पर्म्स बच सके। सिमिलरली बल्बोयूरेथ्रल की भी जो अल्कलाइन नेचर है वो भी उसे प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी फ्रॉम द एसिडिक नेचर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की सिक्रीशंस की जो एसिडिक नेचर है उससे बचा के रखेगी। बल्बोयूरेथ्रल का मेन, इसमें और भी काफी सिक्रीशंस की अल्कलाइन नेचर की सिक्रीशंस, बट बल्बोयूरेथ्रल में आपको मेन जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इसमें म्यूकस सिक्रीशन होती है। तो एक तरीके से फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करता है, एक तरीके से म्यूकस जो मेन आपको इसमें क्वेश्चन आता है कि ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये म्यूकस रिलीज करते हैं। क्लियर, जस्ट टेक अ लुक, फिर मैं आगे चलती हूँ। तो मेन इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, क्लॉटिंग प्रोटीन्स इसमें होते हैं जो एक बार इसको इजैकुलेट को कंसंट्रेट कर देते हैं। क्लियर, बल्बोयूरेथ्रल में जैसे मैंने आपको बताया कि अल्कलाइन नेचर होता है, अल्कलाइन नेचर भी एसिडिक अटैक से बचाएगा। मेनली इसमें क्या है कि फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए म्यूकस होता है फॉर द इजी पॉपुलेशन। तो ये म्यूकस लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, तो इसमें हम मेन टर्म, बेटर टर्म रहेगी कि क्या कर देता है ये म्यूकस, किसके लिए होता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। पेनिस और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के
बीच में उसको एक तरीके से लुब्रिकेट कर देता है। क्लियर? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस में, सिट्रिक एसिड होता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज वगैरह, एंजाइम्स के नाम आपको करने की जरूरत नहीं है। सिट्रिक एसिड भी एक तरीके से इसकी नरिशमेंट के लिए होता है, जैसे कि फ्रक्टोस, इस केस में फ्रक्टोस होता है। अब कुछ बुक्स आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी मेंशन करती हैं, लेकिन मैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी ये सिक्रीट जरूर करते हैं, नो डाउट सिक्रीट करते हैं और यूट्राइन कंट्रैक्शंस में कॉज करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर ये दोनों ऑप्शन में हुए और आपको एक टिक करना होगा, तो आप सेमाइनल वेसिकल के लिए जाओगे, उसकी सिक्रीशंस आप देखोगे 60% है। तो मेनली जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स कंट्रीब्यूट, वैसे भी मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन का कंट्रीब्यूशन कहां से रहा है? सेमाइनल वेसिकल से। मैं रिपीट कर रही हूं, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल सैक जैसा स्ट्रक्चर जो कि वास्ट डिफरेंस के साथ कनेक्ट करके, जैसे सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन वास्ट डिफरेंस आती है, इसके साथ सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन वास्ट डिफरेंस के अंदर ऐड ऑन हो जाती है, तो वो क्या बना देता है? एजैकुलेटरी डक्ट बना देता है। क्लियर? सबसे ज्यादा सिक्रीशन इस ग्लैंड की है, 60% ये कंप्राइज करती है। एल्कलाइन इसकी नेचर होती है, इसकी सिक्रीशंस के अंदर क्या होता है? फ्रक्टोस होता है। एनर्जी नीड्स के लिए क्या होता है? फ्रक्टोस होता है इसकी सिक्रीशंस के अंदर। और यही फ्रक्टोस रेप टेस्ट के लिए भी काम आ सकता है। कुछ क्रिमिनल केसेस में हम चेक कर सकते हैं इफ द फीमेल हैज बीन रेप्ड और नॉट, तो उसमें उसके अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में फ्रक्टोस को हम टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि और कहीं भी ह्यूमन बॉडी में फ्रक्टोस किसी स्ट्रक्चर के अंदर पाया नहीं जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की अगर हम बात करें, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी ये रिलीज करते हैं। ये क्या चीज होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स कुछ ऐसे केमिकल्स या हार्मोन्स हम कह सकते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे ही फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं थ्रू सीमेन, क्योंकि सीमेन की सिक्रीशन में भी ये मिक्स हो जाता है, तो जैसे ही फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंटर करते हैं, इट स्टिमुलेट्स यूट्राइन कंट्रैक्शंस। यूट्रस के अंदर कुछ इस टाइप की कंट्रैक्शंस होती हैं, पेरिस्टाल्सिस जैसी कंट्रैक्शन होती है। जैसे कि अगर यूट्राइन ट्रैक्ट है, यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट हो गए, तो इसमें पेरिस्टाल्सिस जैसा मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ विच द स्पर्म्स आर कैरिड टू द एडिक्वेट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन वगैरह इधर फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, एम्पुला होता है, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसमें पेरिस्टाल्टिक वेव जैसी कंट्रैक्शंस, यूट्राइन कंट्रैक्शंस कॉज कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म को ट्रैवल करने में आसानी होती है। देन कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स, पेनिस से बाहर जैसे ही सीमेन बाहर आएगा तो एक बार उसको ये कोएगुलेट यहाँ पे कर देता है। ठीक है बच्चों? देन अब यहाँ पे ये पेनिस ने जैसे इधर कोएगुलेट कर दिया था इस सिक्रीशन को, इसने क्लॉटिंग प्रोटीन्स ने, तो दूसरी तरफ आया प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस। यहाँ पे एंजाइम्स हैं, तो वही एंजाइम इस चीज को जो सीमेन यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है, तो इसको फिर वो डाइल्यूट करने में हेल्प करेंगे। एक बार क्या होता है, सिक्रीशन के इमीडिएटली बाद एक बार यहाँ पे कंसंट्रेट कर लिया जाता है, कंसंट्रेट करने के बाद ये एंजाइम्स उसको डायलेट कर देंगे ताकि वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर अमाउंट उसका गुड अमाउंट बन जाए। ठीक है? तो इसकी सिक्रीशन प्रोस्टेट ग्लैंड की 25% होती है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। सिट्रिक एसिड भी नरिशमेंट के लिए होता है, जो इसकी सिक्रीशंस में तीन चीजें, सिट्रिक एसिड, कुछ एंजाइम्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। मेनली सिट्रिक एसिड फॉर नरिशमेंट, एंजाइम्स का एक फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया, जस्ट रिमेंबर कि एंजाइम्स इसमें होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सेम ही फंक्शन है। एक चीज याद रखना, बच्चे ज्यादातर क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स यही रिलीज करेगा, ऐसा रिलेशन यहाँ पे मत बनाना। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो हम सेमाइनल वेसिकल टिक करके आएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए। क्लियर? देन बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, 15% सिक्रीशन, टोटल सिक्रीशन मेल एक्सेसरी ग्लैंड
ग्लैंड की टोटल सिक्रीशन में से इसकी सिक्रीशन 15% होती है। इसकी नेचर एल्कलाइन होती है। इसकी मेन सिक्रीशन म्यूकस है जो कि लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेशन कर देता है पेनिस में और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, दोनों के बीच में लुब्रिकेशन कर देता है। ठीक है, तो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस for proper deposition of semen inside the female body. This was all about male accessory glands. What else we discussed today? I will quickly revise. Cross section हमने पहले हमने इसके TS में देखा कि यहाँ पे seminal वेसिकल्स होते हैं। फिर इस चीज का हमने कट सेक्शन करके देखा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर हमने देखा कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है प्लस कुछ पिरामिडल शेप्स सेल्स होते हैं। ये पिरामिडल शेप सेल्स सर्टोली सेल्स होते हैं और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। यहाँ पे इंटरस्टिशियम में मैंने आपको बताया कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स जिनको हम कहते हैं वो होते हैं। ये लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं जिसको हम एंड्रोजन भी कहते हैं। अब ये सर्टोली सेल्स जो इसके अंदर हैं ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करेंगे। तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन अट्रैक्ट करेगा टेस्टोस्टेरोन को अंदर। जब टेस्टोस्टेरोन के अंदर सिक्रीशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीशन बढ़ जाएगी तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम विल बी स्टिमुलेटेड टू फॉर्म स्पर्म्स। फिर स्पर्म्स बनने के बाद उनका हेड जो है वो सर्टोली सेल के अंदर एम्बेड कर लेते हैं जब तक कि फर्टिलाइजेशन के काबिल नरिशमेंट प्रॉपर नहीं लेते। फिर नरिशमेंट प्रॉपर लेने के बाद इससे अपना हेड वो निकाल लेते हैं और ल्यूमेन के अंदर आ जाते हैं। तो ल्यूमेन के अंदर आने के बाद फिर वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्विम करके उसी पाथवे के थ्रू जाते हैं। सेमाइनल वेसिकल्स, रेडी टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडाइडमस, वास डिफरेंस में सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन ऐड हो जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट बन जाती है। इजैकुलेटरी डक्ट से यूरिनरी डक्ट को वो ज्वाइन करके यूरिनोजेनाइटल डक्ट प्रॉपर बन जाती है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट में प्रोस्टेट ग्लैंड की और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशंस भी ऐड ऑन हो जाती हैं। अभी यहाँ से सेमाइनल वेसिकल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो सिक्रीशंस गई प्लस ये सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशन, टोटल जो फ्लूइड बनता है वो क्या होता है, सीमेन उसको बोलते हैं, जिसके अंदर की सारे प्रॉपर ये हार्मोन, सारे प्रॉपर इन्हीं ग्लैंड्स के सिक्रीशंस होंगे प्लस कुछ मेल गैमीट्स होंगे। जस्ट टेक अ लुक ऑन द बोर्ड वंस आई गेट साइड। I think today's concepts are very much clear to you. One thing I forgot to revise with you is the structure of penis. I explained you very much, but revision करवा देती हूँ एक बार फिर से उसकी भी। मैंने आपको 3 बंडल्स इसमें बताए, कॉर्पस, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये तीनों मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा वैस्कुलर होते हैं। इसको कट करके देखेंगे तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स का क्रॉस सेक्शन हमें दिखेगा। और ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो होता है इसके अंदर यूरेथ्रल मेटस जो है वो यहाँ से पास कर रहा होता है, इसमें से यूरिनरी पैसेज या जेनाइटल सिक्रीशन पास कर रही होती है। तो 3 बंडल्स होते हैं, 2 पोस्टीरियर साइड पे या डोर्सल साइड पे होते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक फ्रंटल साइड पे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। सो दिस वाज द एंटायर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर आप पढ़ के ही, ये वाला जो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं दोनों को पढ़ने के बाद नेक्स्ट लेक्चर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।